हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब मेरी शादी की सीज़न शुरू हो गई है, मतलब द डे काउंटडाउन हैज़ बिगन एंड आई वांटेड टू शूट दिस डे इन दिस व्लॉग। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। राइट नाउ वी हैव जस्ट गॉट अप बिफोर एन आवर और सो और रेडी हो गए हैं एंड अभी जा रहे हैं नीचे फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में टिपिकल गुजराती ब्रेकफास्ट है, प्लस कुछ गेस्ट्स भी आए हुए हैं। सो विल शो यू, कम अलोंग। ओके, तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट ऑफ द डे और यहाँ पे सब है और पार्टी हो रही है। तो ये है, कुछ खाली सोफा है और यहाँ पे गांठिया जलेबी की पार्टी हो रही है। दिस इज स्टेपल मॉर्निंग गुजराती ब्रेकफास्ट, व्हाट टू हैव बिफोर योर वेडिंग। Okay, so this day was my first day in salon, और बेसिकली आई हैड गॉन टू YK क्रिएशंस विच इज़ अ वेरी गुड सैलॉन इन राजकोट, और वहीं से मैंने अपनी एंगेजमेंट के टाइम पे भी सारी प्रेप्स करवाई थी और वेडिंग के टाइम पे भी आई चोज द सेम वन। सो सैलॉन में एट द टाइम ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक योर हेयर केयर, स्किन केयर, ब्यूटी केयर एंड वॉट नॉट। So what should you go for and what should you not, that I am going to talk about in one separate video on personal grooming. So इसके लिए आपको मेरी पूरी wedding series ज़रूर देखनी पड़ेगी. But so today what happened is that I had spent from 10 o'clock in the morning till 5 o'clock in the evening in the salon and the day was very hectic. तो उसके बीच में मैं कहीं भी कोई छोटी छोटी snippets या videos या vlogging नहीं कर पाई. But I'll tell you what exactly happened over there. सो एज वी वेंट देयर, वहाँ पे आज उस दिन पे मेरी हेयर केयर ट्रीटमेंट हुई. सो फर्स्ट वॉज द हेयर वॉश, देन इट वॉज हेयर कटिंग, उसके बाद फिर से हेयर वॉश हुआ, देन हेयर कलर हुआ. सो आई हैड गॉन फॉर अ ग्लोबल हेयर कलर. जनरली मैं हेयर कलरिंग नहीं करवाती हूँ, जनरली यूज हैना और द नॉर्मल वेजिटेबल कलर्स ओनली ओवर माई हेयर because those are the most non-harmful solutions. That's what I feel. But शादी थी तो definitely you had to look very good, and that's why I chose the global hair color from L'Oreal. And after the hair color again hair wash हुआ एक बार, और इस पूरी प्रोसेस में ही 2-3-4 घंटे एक्चुअली लग गए थे. सो टिल 2 o'clock द एंटायर प्रोसेस गॉट ओवर, and from 2:30 or so the final step happened, that is the keratin treatment. So again I had chosen for keratin treatment before my wedding because that is the most non-harmful solution, is what I was told from my salon specialist. Because बाकी भी बहुत सारे solutions होते हैं, so everybody and anybody can go along for that as well, like the rebonding, hair straightening, permanent hair straightening or something like that. But अगर आपको बहुत ही non-harmful, most non-harmful, you cannot say totally, it will be no harmful, but the most less harmful solution is keratin treatment. That's what I feel and that's what I had chosen for. So उसमें क्या होता है कि आपके कलर हेयर पे एक keratin का solution लगाया जाता है. Again that comes in various brands, so you can choose one of them. And वो solution they keep it for a while, say around 40 minutes to 1 hour. And उसके बाद आपके हेयर को ब्लो ड्राई करते हैं एंड देन हेयर पे आयरन करते हैं. सो दैट एंटायर सोल्यूशन स्टिक्स ऑन टू द हेयर एंड इट एक्चुअली बिकम्स ड्राई. उसके बाद हेयर वॉश नहीं करना होता है बिकॉज दैट थिंग हैज़ टू बी केप्ट फॉर 24 लॉन्ग आवर्स. तो उससे आपके हेयर थोड़े से स्टिकी लगते हैं, बट यू फील सो like on feeling it will appear sticky or you will feel it sticky, but to others it will just appear like normal straightened or temporary straightened hairs. So आगे के vlog में आप देखोगे कि मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं during the function and all. So this was the entire day routine in salon from 10 o'clock in the morning to 5 o'clock in the evening. और हम actually इतने सारे late हो गए थे, और शाम को as I told there was a function on that day, but we just ran from the salon till the home because फिर बाद में थोड़ा बहुत ready भी होना था. But this was the day routine or the entire day that I spent in the salon, and this is what happened. So I thought actually I'll just sneak peek and tell you about what happened with me into the salon. Hi guys, function चालू हो चुका है और बीच में मैं vlog करना भूल गई क्योंकि मुझे बालों में keratin treatment करवानी थी. I know मैं बहुत ही हेस्ट में साउंड कर रही हूँ और अभी मैं जल्दी जल्दी नीचे भाग रही हूँ. बाकी फंक्शन का वीडियो जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, so stay tuned.
Okay, guys, so let me give you some details about the first function of my wedding that is called Magna Muhurat. तो ये एक ट्रेडिशनल गुजराती फंक्शन होता है जहाँ पे मूंग का बहुत इंपॉर्टेंस है. मगना मुहूर्त मतलब मूंग के मुहूर्त करते हैं. सो मूंग इज़ कंसिडर वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ माना जाता है. और मूंग से पूजा करके मतलब एक कंटेनर टाइप का होता है जिसको हम गुजराती में सुपड़ा बोलते हैं और समथिंग लाइक दैट, जिसमें कि ऐसे हिला हिला के मूंग की पूजा करते हैं. ऑल द लेडीज सिंग द ऑस्पिशियस सॉन्ग, शादी के संगीत गाया जाता है और मूंग से पूजा होती है. सो इट इज़ बेसिकली सेड दैट इस ओकेजन के बाद शादी की सारी जो शुभ शुरुआत होती है वो शुरू हो जाती है. So Moong is considered very auspicious and plays an important role in the Gujarati weddings, and all the weddings begins with Moong. So Magna Muhurat, Moong ke Muhurat, that is what it is, and this is the function that we had on this day. So you will see a lot of festivities and functions and the traditional functions, and I had also done it with Moong. So ये आपको आगे के vlog में देखने के लिए मिलेगा. So उसके बाद again, because we are Gujarati, we have to dance and we have to do Garba. तो हमने थोड़ा बहुत वो भी कर लिया. So stay tuned and you will get to know a lot of entertaining things in this vlog. A few moments later. तो अभी फंक्शन थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, सब लोग बैठे हैं. हाय, तो अभी फटाफट करके फंक्शन ख़त्म हो गया है और अभी बजे हैं रात के 11:30. ज़्यादा तो पूरे दिन में मैं शूट नहीं कर पाई, मेरा आधा दिन क्योंकि पार्लर में सैलून में ही चला गया. तो अभी बैठे हैं, पैकिंग करनी है, बहुत कुछ करना है. तो यहाँ पे मतलब सब लोग बैठे हैं पैकिंग करने के लिए. पैकिंग कर नहीं रहे हैं, पैकिंग क्या करना है वो सोच रहे हैं अभी के लिए. और पैकिंग मतलब जो मुझे लेके जाना है पंजाब और वो सब चीज़ें. तो लेट मी शो यू यहाँ पे कौन कौन है. हाय हेलो. और ये हेलो हाय हाय. व्हाट्सअप, क्या कर रहे हो सब लोग? पैकिंग की लिस्ट बना रहे हैं. पैकिंग की लिस्ट बना रहे हैं. ओके. और ये मेन इंसान है जिसको मैं ज़्यादा नहीं लूँगी. ओके गाइस, गुड मॉर्निंग. कल मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो आज सुबह कर रही हूँ. कल रात को हमने पैकिंग का जो भी प्लानिंग करना था वो सब कर लिया और अभी मैं उठी हूँ. आज का दिन भी हेक्टिक है बट आज कोई फंक्शन नहीं है. 10 बजे हैं. एक्चुअली बहुत लेट हो गया बिकॉज कल रात को हम कुछ करते करते काफ़ी लेट सोए थे, तो मैं काफ़ी लेट उठी हूँ. और ये मेरे बाल हैं जो कि कैरेटीन वाले हैं. आज मेरा हेयर वॉश होगा
और फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट है। सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बहुत सारी आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही होगी, बट आई कैन नॉट हेल्प बिकॉज शनिवार है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे ट्यून्ड। चोरी चोरी चुपके चुपके जब शादी से पहले फोन पर बात होती थी मेरी उससे, तब मैं कहती थी कि 10 दिन क्या, मुझे तो सदियों का इंतजार लगता है अब भी हमारी शादी में और हमारे मिलन में। पर उसी पल मन में एक और ख्याल आता था कि क्या सच में 10 ही दिन बचे हैं मम्मी पापा को, इस परिवार को और इस घर की चौखट को लांघने में। अब खुशी कहूं या उलझन कहूं इसे, अब आप ही बताओ, एक पल की खुशी या दूसरे ही पल इस ख्याल को उलझन कहूं इसे। पर अब सोचती हूं तो लगता है सच में एक लड़की का शादी से संबंध ही होता है ऐसे।